ਸਰਾਊ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੂਮਾਨ ਗੜ੍ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਨੂਮਾਨ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਲਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਤੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰੂ ਘਾਟ, ਸਰੂ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਘਾਟ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਓ ਨਦੀ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾफ़ी ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਪੌੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਊ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਾਓ ਨਦੀ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸਰਾਊ ਤੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਨਈਅਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਵरुण ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਰਥ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਈਡੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਸ ਨਦੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੋਟ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਆਓ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚਲੋ ਬਈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, कौन लेके जाऊगा? हाँ भैया, तुम लेके चलोगे? क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक भाई। चल फिर एंट्री हो गई जी पटियाला वासियों की। वैसे पटियाले वालों कहते हैं पानी तो डरना चाहिए। हाँ जी वरुण जी, पटियाले वालों कहते हैं पानी तो डरिया करो ना। मैनू तो जी तैरना आता है। चलो हाँ जी, नहीं यार तुहाडा की विचार है इस बारे? देखो जी, सरयू आरती का इंतजार कर रहे हैं, उन्नी देर सरयू नदी का चक्कर लगाने वास्ते जा रहे हैं। तो असी भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को जिहड़ा अज अयोध्या दर्शन कर पाए हैं जी। सारे दर्शकों को जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी वरुण जी, तैयार हो? हाँ जी, जय श्री राम। जय श्री राम। लाइव तुर पे हैं जी। जय श्री राम। अयोध्या नगरी आए तो सराओ नदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ VOTING ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਵੱਡੇ ਕਰੂਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਰਾਓ ਨਦੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਾਓ ਨਦੀ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵरुण ਜਿੰਦਲ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? बड़ा भागा वाला जी मैं अज जेड़े प्रभु श्री राम के दर्शन करके उरे पहुँचे हैं। सराऊ नदी की एक गल आ गई, जिमें रामलीला दे विच श्रवण कुमार पानी लेन जाते हैं अपने माता पिता लिए, तो दशरथ जी उन्होंने जानवर समझ के एक उन्होंने तीर कमान चला देने, कमान चला देने, तो उन्होंने उत्थे मृत्यु हो जाती है। तो अज असी सुभाग्यशाली हैं जिथे श्रवण वर्गे पुत पानी लेन आए सी अपने माता पिता ਲਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਰੇ ਸਰਾਊ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵरुण ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ VOTING ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਅਰਥ ਟੀਵੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਅਯੋਧਿਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਤੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ।
ਸਰੋਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਚੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਆरती ਦੀ समाप्ति किस तरह से रहा जी? आरती आपने की है अभी? बहुत आनंद आया आरती में और काफ़ी यहाँ लोग काफ़ी एकत्रित थे, बहुत भीड़ थी, आनंद बहुत आया आरती में हम लोगों को। आरती में आनंद आया। अगर बात कर लें अयोध्या धाम की व्यवस्था और कैसा सारा सिस्टम बनाया हुआ? बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। हम लोग यहाँ कल से आए हुए हैं, बिल्कुल हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई, दर्शन में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। दो बार हम लोग दर्शन कर चुके हैं, बहुत आराम से दर्शन हुए। जब बंदा वहाँ पे खड़ा होता है, रामलला के दर्शन होते हैं, तो भावुक क्यों हो जाते हैं? बहुत ही अच्छा लगता है दर्शन करने में और बिल्कुल मन से अपने आप ही भाव निकलता है। हाँ, भाव निकल आते हैं, अश्रु अपने आप निकल आते हैं, बहुत आनंद आता है। सो भक्त की भावना है। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम यतेंद्र है, मैं दिल्ली से आया हूँ जी। और ख़ास तौर से मैं रामलला के दर्शन के लिए आया हूँ और यहाँ आकर के मुझे अलौकिक एक अद्भुति हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात भगवान राम मेरे सामने खड़े हो। आज सुबह ही मैंने दर्शन किए हैं और गंगा माँ की आरती का जो परम आनंद मिला है, मैं समझ रहा हूँ कि मेरा जीवन सफल हो गया। व्यवस्था कैसी रही यहाँ पे? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, हर चीज़ की व्यवस्था है। ख़ास तौर से मतलब आने जाने की सुविधा, सफाई की बहुत अच्छी सुविधा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई योगी जी हमेशा मेरी भी उम्र उनको लग जाए। चलो, आपने योगी जी का नाम ले लिया है, मोदी जी की बात हो गई है, तो एक बात और कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने तभी तमाम आरोप भी लगाए कि बहुत कुछ तोड़ना पड़ा, इसको व्यवस्थित करने के लिए बहुत चीज़ें खराब की गई। देखो ऐसा है कि कोई चीज़ अगर जो गलत है तो हमारे शरीर का कोई पार्ट्स हल्का सा खराब है तो उसमें काट छांट करने में कोई बुराई नहीं है। और उससे ज़्यादा जितना नुकसान किसी का हुआ भी है तो उससे ज़्यादा उसको मतलब मजबूती भी मिली है, उसे रोज़गार भी मिला है। और मेरी अभी बात हो रही थी तो अनेकों राज्यों से, अनेकों जिलों से यहाँ आ रहा है आदमी, अपना रोजगार पा रहा है। तो जितना पहले यहाँ रोजगार नहीं होगा उससे कई सौ गुना अब रोजगार है यहाँ। तो इसका कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है इन चीज़ों से। ये तो खैर अब हर तरीके का इंसान होता है, कोई अच्छी बात भी कहेगा, बुरी भी कहेगा। योगी जी के फैन लग रहे हो? नहीं, मैं किसी का फैन नहीं हूँ, लेकिन मैं उस इंसान का फैन हूँ कि जो वास्तविकता की बात करता है, जो वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। मैं उस इंसान का फैन हूँ जी। तो बहुत अच्छी बात है जी। हाँ जी, धीरज जी तो हमारे साथ आए हैं, कैसा लगा? बहुत आनंद आया, बहुत आनंद, बहुत आनंद आया जी। आरती देख के? आरती देख के बहुत आनंद आया, रामलला का दर्शन करके बहुत आनंद आया, आनंद ही आनंद आई। तो शब्द नहीं है। आप भी आ जाइए जी। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? जी सर, मैं सुभाष प्रसाद रक्षित, मैं हिरणपुर झारखंड से आया हूँ। अच्छा। यहाँ का भव्य व्यवस्था देख के बहुत ही आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। विशेष करके प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ इतना दुरुस्त है, कोई टच से मस नहीं कर सकता है। यहाँ का व्यवस्था बहुत नाम सुने थे, बहुत ही नाम सुने थे, आज आके साक्षात दर्शन हुआ। ये ऊपर वाले श्री राम की कृपा है कि हम पहुँच पाए। अभी भी भावुक हो रहे हो आप, आवाज आपकी भावुक हो रही है, क्या कारण है? कारण है सर, ये लोगों के तपस्या के बाद ही इस जगह को पहुंच पाता है। हम किसी जमाने में, किसी जन्म में हम तपस्या किए थे कि आज पहुंच पाए हैं। अच्छा। ये श्री राम की कृपा है। ये श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण भैया को और मेरे हनुमान भैया को, हनुमान बाबा हनुमान को बार बार कोटि कोटि बार प्रणाम। आरती के दर्शन किए हैं, आरती में कैसा लगा? बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। आरती का दर्शन भी किए, बोटिंग भी किए, बोटिंग में बहुत आनंद आया। घूमने का सारा व्यवस्था है, गाड़ी छोटा गाड़ी भी है घुमाने के लिए। पैसा 2 पैसा कम बेसी जो भी लग जाता है उसके लिए कोई बात नहीं है। हम लोग दूर दराज से आए हुए, हम झारखंड से आए हुए हैं, हम पाकुड़ जिला के रहने वाले हैं। बहुत दूर से, यहाँ से करीब 700-800 किलोमीटर दूर से आए। बहुत तो जिस किसी भी श्रद्धालु से बात करते हैं वो कहते हैं कि आनंद की सीमा नहीं, आनंद को बयान नहीं किया जा सकता। वो पल ही ऐसे होते हैं जब रामलला सामने आते हैं, आंखें ओझल हो जाती हैं, धुंधली आंखों से एक बार दीदार होते हैं, फिर आंखें साफ कर दर्शन करने पड़ते हैं। मतलब भावुकता, भावना ऐसी होती है कि आंखें झलक जाती हैं। सो ये भाव है, ये शक्ति है, ये श्रद्धा है। कह रहे हैं कि तपस्या है, किसी जन्म में कोई पुण्य कार्य किए थे जो यहाँ पर दर्शन की जो हमारी इच्छा है वो पूरी हुई। श्रद्धालु हैं, हर तरफ श्रद्धा है, ऐसे। हाँ जी, आप भी आइए। जा रहे हैं, कैसा रहा? बहुत अच्छा, आनंद आया, बहुत आनंद भूलने नहीं हो गए। बहुत अच्छा, जीवन में कभी भूलने लायक नहीं है। आपकी तो उम्र कितनी है? 70 ईयर्स नियर 70 साल। कहाँ से आए हैं? बिहार, दरभंगा से।
दरभंगा से आए हो, 70 साल पहले कभी कल्पना की थी कि ये भव्य दर्शन होंगे? अभी नहीं, भगवान भला करे, नरेंद्र मोदी की जय जयकार हो। हम तो यही ये तो राजनीति की तरफ जा रहे हैं। नहीं, अच्छा है, उनका राजनीति से नहीं कोई संबंध है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का बात हुआ, उन्हीं का देन है जी। तो फिर लगता है इस बार फिर मोदी को ले आओगे? जय जयकार रहेगा, 400 पार रहेगा। वाह जी वाह, ये तो और ही बात कर दी, कहते जय जयकार रहेगा, 400 पार रहेगा। सो देखिए आप सभी लोग आए हैं, आप भी बोलिए जी, आप कहाँ से आए हैं जी आप? हाँ जी, कहाँ से? हम कानपुर से। कानपुर से आए हो, काफी लंबा सफर किया है, कैसा रहा बहुत अच्छा, बहुत सुंदर दर्शन? हो गए? बहुत अच्छे से दर्शन हुए, 2 बार दर्शन किए हमने, कल रात में किया, सुबह भी किए। जिससे बात कर रहा हूँ सभी बोल रहे हैं 2-2 बार दर्शन किए हैं, लेकिन यहाँ लाखों लोग हैं, फिर दर्शन आराम से हो जाते हैं? हाँ, हमको तो बहुत आराम से, सुना था बहुत भीड़ यहाँ पे रहती है, लेकिन हमको बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, सोचा नहीं था। मतलब व्यवस्था अच्छी है? बहुत अच्छी व्यवस्था। अभी आरती में भी दर्शन किए हैं, भाग लिया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत मन आनंदित हुआ, बहुत सुंदर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जिस किसी से बात कर रहे हैं उनका कहना है चाहे लाखों लोग आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि टस से मस भी कोई चीज़ नहीं हो रही। चाहे सुरक्षा की बात कर लें, चाहे संसाधनों की बात कर लें, सुरक्षा में कहें तो सीसीटीवी कैमरे हर जगह पे लगे हुए हैं, हर जगह पे सुरक्षा कर्मी, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस मुस्तैद है। वहीं पे अगर बात कर लें व्यवस्था की, तो व्यवस्था ऐसी कि साफ़ सुथरी सड़कें, साफ़ सुथरी सिस्टम और सुरक्षा की बात कर लें तो परिंदा भी पर नहीं मारता। एक सज्जन से बात हुई, उन्होंने कहा अगर कोई चीज़ खो भी जाती है वह भी अपने आप मिल जाती है। अगर ऑटो के सफ़र की बात कर लें तो लिख कर लगा रखा है कि कितने पैसे लगेंगे और उतने ही पैसे लगते हैं। मतलब कि व्यवस्था हर चीज़ की यहाँ पे एकदम से सही और सटीक की गई है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये अभी भी दर्शन चल रहे हैं। आरती के बाद दिए जो तराए जा रहे हैं, ये श्रद्धा का भाव है। ये देखिए आप तस्वीरें, ये सरयू नदी की तस्वीरें हैं। ये देखिए यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन किए जा रहे हैं। हर व्यक्ति का अपना भाव है। अभी ये जो दीपक हैं इनको सरयू नदी में तैराया जाता है अपनी अपनी श्रद्धा के भाव से। जैसे जिसकी श्रद्धा वैसा उसका भाव। भगवान तो उसी को उसी रूप में मिलते हैं जिस रूप में वह भाव भगवान की कल्पना और आस्था करते हैं। देखिए यहाँ पे सरयू नदी में अभी दिए जो हैं वो चलाए जा रहे हैं ताकि इनकी जो भी इच्छा है या जो भी इन्होंने मनोकामना की है वो पूर्ण हो। यहीं पे अभी थोड़ी देर पहले ही आरती में ये सभी लोग शामिल थे। कैसा लग रहा है जी अभी आरती में शामिल हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। इस आरती भी बहुत बढ़िया से दिखी और ये यहाँ पे दिया जला के और पानी में जैसे ही सरयू में पैर कदम रखे सारी थकान उतर गई। सुबह हम लोग 3 बजे के जागे हुए, 6 बजे की ट्रेन थी, यहाँ 2:30 बजे आए हैं और उसके बाद अब ये जो सारी थकान, यहाँ इतना आनंदित हो गए। बहुत बढ़िया दर्शन हो गए रामलला के? नहीं, रामलला के कल सुबह करेंगे दर्शन। कल, हाँ कल सुबह। आपने एक शब्द कहा कि जैसे ही जल में पाँव रखा थकान उतर गई। हाँ बिल्कुल, थकान उतर गई, एकदम फ्रेश, एकदम बहुत ही अच्छा आनंद आया। कहाँ से आए? हम लोग दिल्ली गुड़गांव से आए हैं। दिल्ली से आए। माता जी भी साथ आए हैं। कैसा लग रहा है जी? थकावट कैसी है? इन्होंने तो बोल दिया। नहीं, थकावट अब हो ही नहीं रही। इतने हमें दिल से खुशी है और इतना आनंद आ रहा है। आरती में भी बहुत अच्छा लगा। तो हमने भी ये छोटे दिए यहाँ मिल रहे हैं, हमने सोचा यही चला है, तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। और कल सुबह हम रामलला की दर्शन करेंगे। मैं बता देता हूँ, जब दर्शन करोगे ना भावुक हो जाओगे और जो ये बोल रहे हो ना कि छोटा मोटा थकावट ही नहीं हो रही, वो भी खत्म हो जाएगी। आपको लगेगा कि जिंदगी यहीं पे खट जाए। थकावट हो ही नहीं रही। वो दिन में लग रहा था क्योंकि थोड़ा गर्मी था। यहाँ तो इतना प्लेजेंट लग रहा है, इतना मतलब वातावरण इतना शुद्ध और इतना ठंडा, मतलब इतना शांति प्रिय है कि आनंद ही आनंद है। आपको कैसा रहा? आपका अनुभव बताएं। हाँ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और यहाँ सरयू नदी में हमने पैर डाले हुए ठंडे ठंडे पानी में, तो वही पूरे दिन का जो हमारा एक वो था कि हम रामलला जी से मिलने जाएंगे, उन्हें देखेंगे, यहाँ आके शांति पाएगी, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। सारी हमारी थकान उतर गई। ठंडे ठंडे बिल्कुल नहीं सोचा था और इतनी जल्दी भगवान जी का बुलावा आएगा, ये तो नसीब की बात है कि उन्होंने हमें याद किया और हमारे को मौका मिला कि हम यहाँ आ सके। सोच तो हम रहे हैं जब से यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है, लेकिन हमें ये अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि रामचंद्र जी हमें इतनी जल्दी बुलाएंगे। भगवान है, जब कोई सोचता है तो वो साक्षात होते हैं। आप कहाँ से आए हो बेटा?
हम बैंगलोर से आए, कर्नाटक से। कर्नाटक से आए हो? हाँ मेरी आवाज समझ लेते हो लैंग्वेज? हाँ हाँ, हिंदी आती है अच्छा, हमें। हिंदी आती है। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? बहुत अच्छा रहा। हमने तो सुबह सरयू नदी में स्नान किया, फिर हनुमानगढ़ी गए, फिर रामलला के दर्शन किए। इतने अच्छे से दर्शन हो गए, उतना ना भीड़ थी ना कुछ, एकदम शांतिपूर्वक दर्शन हो गए और बहुत एकदम वो अलग सा फील हुआ कि सच में राम जी हैं। तो लग रहा है आपकी आंखों से अभी मेरे को लग रहा है कि भावनात्मक हो रही है। हाँ, वो तो अभी ऐसे जल छिड़का है सरयू नदी का। और आरती तो बहुत भव्य आरती थी, मतलब मजा ही आ गया देख के। बहुत दूर से आए हो, कभी ऐसा नहीं लगता है कि इतनी दूर जाएंगे व्यवस्था कैसी रहेगी, सुरक्षा कैसी रहेगी, कि विश्वास था? विश्वास था। राम जी का जब भी बुलावा आता है तो हम आ जाते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुरक्षा नहीं रहेगी। हमेशा हम राम जी के पास आ रहे तो हमेशा हमारा ख्याल रखेंगे। बिल्कुल जी। आप भी साथ आए हो? हाँ अच्छा, हाँ, आपका क्या अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। दर्शन हो गए? दर्शन बहुत अच्छे हुए। अच्छे हो गए? हाँ, बहुत चलो, अच्छे। जिसको पूछते हैं वो कहते हैं वैसे तो राम के दर्शन तो कन कन में है, जहाँ पे आंखें बंद करें राम दिखते हैं, लेकिन एक यहाँ पर अलग सी एक कहते हैं अलौकिक ताकत है जो यहाँ पे आ रहे हैं। सभी भावनात्मक भाव में बह रहे हैं, चाहे वो सराव नदी की बात हो, आरती की बात हो, चाहे वो रामलला के दर्शन की बात हो। हर व्यक्ति आज भावनात्मक है और उसको ऐसा लगता है कि वह आज राम जी के पास पहुंच चुका है। रामलला के दर्शन के लिए वो पहुंचा है और रामलला के उसको दर्शन हुए हैं। आओ बात करते हैं, और भी यहाँ जो आए हुए हैं भगतजन, उनसे पूछते हैं। देख, युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम पुष्पाणी पांडे। पांडे साहब, कहाँ से आए हो? दर्शन कैसे रहे? अभी हमने दर्शन नहीं किया, हम आए हैं नाका नवीन मंडी, यहीं अयोध्या से ही हैं। अच्छा, हाँ, हम यहाँ से आए हैं। तो आप तो नसीब वाले हो, अयोध्या से हो, जब दिल करता है तभी दर्शन कर लेते हो। नहीं, अभी दर्शन फिलहाल नहीं किए, लेकिन काफी रिश्तेदारों को दर्शन करा चुके हैं। अभी हम खुद नहीं गए। कहते हैं कि जो कुएं के पास होता है वो प्यासा रह जाता है, क्योंकि जो भी रिश्तेदार आता होगा वो बोलता है। मंदिर बनने के पहले काफी बार दर्शन किया था। हाँ। उस टाइम पे बहुत आराम से दर्शन हो जाता था। अब काफी लंबी भीड़ में तो थोड़ा सा टाइम लेके आना पड़ेगा। तो होता नहीं है, जैसे आप कहे कि बगल में रहने वाले नहीं आ पाते हैं। अच्छा, कहाँ से रिश्तेदार फोन कर रहे हैं कि भैया पांडे जी हमें दर्शन करवा दीजिए हमारे? रिश्तेदार तो काफी, मतलब जिसका फोन आता है सिर्फ एक ही बात करते हैं कि हाँ दर्शन करना है, दर्शन करना है। अब दिल्ली से हैं कुछ लोग इधर दमन से हैं, गुजरात से हैं, सब अलग अलग। ये भी कुछ रिश्तेदार ही मेरे आए हुए हैं। ये भी कहाँ से आए हो भाई? ये लोग तो अच्छा, यहीं से। सब बगल। करवाने की जिम्मेदारी पांडे जी की। हाँ, वही लेके आए हैं। अभी तक पिताजी करते थे, अब हम कर रहे हैं। चलो, ये अच्छी बात है जी। पांडे जी ने बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि दर्शन करवा रहे हैं। कहते हैं रिश्तेदारों के दूर दूर से फोन आ रहे हैं। कुछ रिश्तेदार तो ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने कभी फोन नहीं किया होगा, लेकिन अभी फोन आ रहा होगा। हाँ, अब जैसे फैजाबाद में अब आपका घर गेस्ट हाउस बन गया है। कि कोई भी आता है तो भाई दर्शन कराओ, घुमाओ, यही सब है। अब तो डर भी लगता है, फोन उठाते थे। ये बात तो आपने पांडे जी बड़ी स्पष्ट बोल दी है। बहुत सारे रिश्तेदार अभी फोन नहीं करेंगे। नहीं, खुल के, जैसे अब पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि हाँ भैया दर्शन कराओ, घुमाओ। मना कर दो तो वो लोग अलग गुस्सा जाते हैं। हाँ। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा कम बातचीत रखें। नहीं, बाकी अपनी तरफ से करना चाहते हैं। करना चाहते हो? हाँ। क्या करते हो? स्टडी करते हो? हाँ, हम तो स्टडी करते हैं। तभी फिर टाइम की दिक्कत होती होगी। नहीं, टाइम की दिक्कत, जैसे हम इतना धूप हो रहा है अब इस टाइम पे, शाम को कराना चाहेंगे तो करा सकते हैं। हम लोग खुद ही जैसे संडे वनडे को निकलते हैं, शाम को निकलते हैं, क्योंकि जैसे फिर वही बात है, जो दूर से आएगा वो पैदल भी चल लेगा। हम लोग चाहते हैं कि अंदर तक घुसे कार बाइक लेकर के। हाँ, चलो, अच्छा तजर्बा है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। पांडे जी ने बताया कि रिश्तेदार, चलो बनता भी है, अगर कोई कहीं पास में है तो रिश्तेदार तो फोन करते ही हैं कि भैया दर्शन करवा दो। पांडे जी कहते हैं कि हम अभी लोगों को दर्शन करवाने के लिए लगे हैं। कभी कभी डरते हैं कि हमें फोन ना उठाएं क्योंकि रिश्तेदार ने बोलना है कि यार दर्शन करवा दीजिए। चलो, कोई बात नहीं, दर्शन करवाते रहो। जय श्री राम। सहारनपुर से कैसे रहे दर्शन? बहुत अच्छे, दर्शन अच्छे हैं, व्यवस्था अच्छी है? बहुत अच्छी। चलो, ये बात बढ़िया है कि व्यवस्था अच्छी है। सो इनसे ही बात करते हैं। हाँ जी सर, आप कहाँ से आए हो? सर, हो गया हमारा, सबका हो गया। अच्छा, साथ ही आए हो? ये आपने स्पेशल कुछ डाला हुआ है, दिल्ली स्टडी ग्रुप? अच्छा, कोई ग्रुप है? स्टडी ग्रुप से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। अच्छा, सभी आए हो? हाँ। चलो ठीक है जी, सभी यहाँ पे पहुंचे हैं। सभी को 200-250 लोग आए, ठीक है, 200-250 लोग यहाँ पे आए हैं और इन्होंने दर्शन किए हैं। सभी को अच्छे दर्शन हुए हैं। सभी आज कह लें कि वो खुश हैं कि वह रामलला के दर्शन के लिए आए और उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हुई है। हाँ जी, आप कहाँ से आए हो? हम मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से आए हैं। मध्य प्रदेश से? मतलब मैं कह रहा हूँ कि जिससे भी बात करता हूँ वो अलग एक स्टेट से होता है ना? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, मन तृप्त हो गया रामलला के दर्शन देख के। क्या क्या खास रहा? खाना पीना भी बहुत अच्छा है यहाँ का। सिस्टम भी बहुत अच्छा। गलत तो नहीं, नहीं, कुछ नहीं, बहुत क्लीन है, नीट है, बहुत अच्छा। हाँ, ये बात आपने बड़ी अच्छी कही कि सब कुछ क्लीन, बहुत नीट है। हर 2 मिनट बाद यहाँ पे सफाई सेवक आते हैं, वो सफाई कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? आदित्य। आदित्य जी, क्या करते हो आप? मैं बैंक में हूँ। बैंक में हो?
छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन आप आए हो, दर्शन की अभिलाषा थी। यस, दर्शन की अभिलाषा थी। क्या रहा फिर? बहुत बढ़िया रहा, बहुत मजा आया। बढ़िया रहा। व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया व्यवस्था है सर, पूरी व्यवस्था अच्छी? बहुत बढ़िया बढ़िया। तो जिससे भी बात कर रहे हैं, अभी तक कोई नाराज नजर नहीं आया। वैसे तो नाराज कोई होगा भी नहीं, क्योंकि राम भूमि है, अयोध्या है, लेकिन फिर भी जिससे भी बात कर रहे हैं उसको ऐसा लग रहा है कि आनंदित हो गए हैं। जो सोचा था जीवन में वह आज महसूस कर लिया है। जय श्री राम। गल कर लिए अयोध्या विच वसी सरयू नदी दे बारे। इस दा इतिहास बड़ा ही पुराना है। शास्त्रां दी मन्नीए तां ब्रह्मा जी सृष्टि रचेता ने ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਪ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਅਪਾਰ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ। ਗਦਗਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੜ ਆਏ। ਹੰਝੂ ਗਿਰਦੇ ਦੇਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੰਝੂ ਰੋਕ ਲਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੋਇਆ, ਉਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰੀ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਵਸਤ ਮਨੂ ਨਾਮਕ ਰਾਜਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ਼ਕਵਾਕੂ ਸੀ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਕਵਾਕੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 60,000 ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਨਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਧ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫਲ ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।